تو اسی لیے میں کہتا ہوں باہر کا ٹیمپریچر دیکھ کر کے کوئی ہمیں ہلکا بھی نہ سمجھ لے۔ اقبال نے کہا تھا اسی گرمی سے دنیا خوف زدہ ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہا کرتے تھے ان کے اندر جو روح محمدی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، یہ جب تک باقی رہے اسے 1000 ٹکڑوں میں بدل دو، پھر سے یہ جمع ہو ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا راز، ہماری تاریخ پر بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مقالات لکھے اور تاریخ لکھی ہے۔ اس سے ایک مسلمان کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کس مسئلے پر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی اس بات پر کی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ان کو توڑا جاتا ہے، پھر یہ جمع کیسے ہوتے ہیں؟ 1400 سال میں کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہماری قوم کا پورا اس قدر نقصان کیا کہ ہمارے سروں سے مینار بنا دیے، بغداد کو ہمارے خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی آج یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ تو اس بات پر پی ایچ ڈی چل رہی تھی، تو اس مسلمان نے پوچھا پھر آپ کس ریزلٹ پر پہنچے، نتیجہ کیا نکلا آپ کا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ان پر حملے ہوئے، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا، ان کے مال لوٹ لیے گئے، ان کے بچوں کا قتل ہو گیا، بہت مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، لیکن ایک چیز ہے جو انہیں پھر سے جمع کرتی ہے، وہ نام محمد ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، جس کو یہ اس قدر حساس انداز میں لیتے ہیں کہ ان کے ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں، پھر یہ اس گنبد کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اور یہی بات ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سپورٹ مین جو تھا، کھلاڑی تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، لیکن اسلام میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ سوچا تھا کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہوتا، ہم کو آزاد جینا چاہیے، لیکن مجھے میری فکر نے یہاں تک پہنچایا، میں نے دیکھا ہزاروں برائیاں ہیں دنیا میں، تو کچھ تو اچھا ہوگا، جب برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے میں برائیوں کے خلاف دیکھتا گیا کہ اچھائی ہے کہاں، تو مجھے میرے سفر نے اسلام کی منزل پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، جو بات ہے، اس نے ہنس کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مسلمان بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس دور میں جب ان کو پوری دنیا اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، عیسائی بھی ہیں اس دنیا میں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسے آزاد خیال ہیں کہ کوئی اگر عیسائی حکومت، کرسچن حکومت ہے، اور وہاں پر جا کر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تختی لکھ کر کے گھوم رہا ہو، نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو، تو وہ دیکھیں گے اور چل پڑیں گے۔ کہا کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہودی بھی اس چیز کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، کسی نبی کی گستاخی کوئی کر کے گھوم رہا ہو، ان کی ہی حکومت کیوں نہ ہو۔ لیکن وہی سپورٹ مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ ایسا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہ ہو، تھوڑے سے رہتے ہو، کسی اور کی حکومت ہو، اور وہاں کوئی بندہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زندہ بچ کے دکھائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مشہور آدمی کہہ رہا ہے امریکہ کا، جہاں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے ہو اور پھر ان کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد گھومتا ہو، ایسا پاسیبل نہیں ہے۔
गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गुफे में बैठ कर सकता है, मजमे में आना ये मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूं, मायूस नहीं हूं। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफा साथ है पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो, जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं, और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हजारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक पर अटैक किए जाते हैं, फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे, जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया, किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूं, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी,
تو پھر ڈرے सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो ये है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजु शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अजीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी। 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1,00,000 जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1,00,000 की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है। मेरे मुस्तफा के नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयां ये बताती हैं, हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे,